Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is History, Standard 8th, Chapter number 14, Formation of State of Maharashtra. Students, in this chapter we will study how State Maharashtra is formed, okay? We have studied how we got freedom from the British, okay? And after that, country is divided into two parts, okay? That is first one is India and second one is Pakistan. फिर पाकिस्तान में कौन से स्टेट जाने में मर्ज होना चाहते हैं, कौन से इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे क्राइसिस हुए थे, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। अब महाराष्ट्र स्टेट्स कैसे बना, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। After India gained independence, there was demand on large scale for the reconstruction of state on linguistic basis. अब हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गया था, ठीक है, बट अब जो है स्टेट वाइज जो है मूवमेंट्स चल रहे थे कि अब जो है स्टेट वाइज कैसे बनना चाहिए, तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनना चाहिए। जैसे अभी महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो मराठी लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। In Maharashtra also, demand for state of Marathi speaking people lead to the Samyukta Maharashtra movement. From 1946 onward, through various changing circumstances, the movement progressed, and finally on 1st May 1960, the state of Maharashtra came to form. तो जो है महाराष्ट्र स्टेट जो है वो उसके लिए भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए, ठीक है। फिर बहुत सारे मूवमेंट्स होने के बाद जो है 1960 में जो है महाराष्ट्र स्टेट बना, ठीक है, जिसमें जो है ज़्यादातर लोग मराठी स्पीकिंग बोलने वाले रहते थे, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो उसमें मल्टी लिंग्विस्टिक पीपल्स रहते हैं, ठीक है, मल्टी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, बट मराठी स्पीकिंग जो है वो ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। वहीं अगर आप दूसरे स्टेट में चले जाओ तो वहाँ पे मराठी नहीं बोली जाती है, क्योंकि वो जो है अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड From the beginning of 20th century, many scholars had begun to express their thoughts on unification of Marathi-speaking people. In 1911, the British government had to suspend the partition of Bengal. On this background, N.C. Kelkar wrote that the entire Marathi-speaking population should be under the domination. When 20th century was beginning, all the scholars began to express their thoughts that all the Marathi speaking peoples comes together, okay, in the unity, and we will do the movements for the state of Maharashtra. In the year 1911, the British government suspended the partition of the Bengal, okay. जब ये एंटी पार्टीशन का मूवमेंट चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बंगाल का पार्टीशन होने वाला था उसे रोक दिया। फिर एनसी केलकर जो है उन्होंने लिखा कि जितने भी मराठी लोग बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, उन्हें एक स्टेट मिलना चाहिए जहाँ पर सिर्फ मराठी बोलने वाले ही लोग रहें, ठीक है। फिर इन 1915 लोकमान्य तिलक हैड डिमांड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ए स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। सो जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने भी यही डिमांड की, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं एक अलग स्टेट मिलना चाहिए, ठीक है। But during that period, the issues of independence of India was more important, hence these issues remain aside. तो पर उस टाइम जो था पहले सबसे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना था, ठीक है, इसलिए इस इशू को जो है उन्होंने साइड में रखा, क्योंकि इंडिया को जब इंडिपेंडेंट मिल जाएगा तो हम इंटरनली जो भी स्टेट्स को जिसमें भी डिवाइड करना है वो आपसी सहमति से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले सबसे हमारी जो कंट्री है उसको हमें ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस दिलाना था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। ऑन 12 मई 1946 इन दी
साहित्य सम्मेलन at Belgaum, an important resolutions regarding Samyukta Maharashtra was passed. Students on 12 May of 1946 in the Sahitya Mele, the important resolution was passed, that is the Samyukta Maharashtra. Okay, what is Samyukta Maharashtra, that we will study ahead. Okay, Samyukta Maharashtra Parishad on 28 July, Maharashtra Ekikaran Parishad was called at Mumbai. Shankar Rao was its president. It passed a resolution that all Marathi-speaking regions should be included in one state. This should also include Marathi-speaking region of Mumbai, central provinces as well as Marathwada and Karnataka. अब 28 जुलाई को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था महाराष्ट्र एकीकरण परिषद। मतलब लोग एक साथ जो है मिलकर कुछ ऐसा करेंगे अपने स्टेट के लिए, ठीक है, जिसका प्रेसिडेंट जो है शंकर राव देव को बनाया गया, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जितने भी मराठी स्पीकिंग रीजन्स है, जितने भी एरियाज़ हैं मराठी बोलने वाले, उन सबको मिलाकर जो है एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है। जितने भी मराठी स्पीकिंग एरियाज़ है, जैसे कि उसमें आता है मुंबई, सेंट्रल प्रोविंसेस, मराठावाड़ा, ठीक है, गोमनाथ तक, तो ये जितने भी एरियाज़ है जहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, उन सबको मिलाकर क्या बनाया जाए, एक स्टेट बनाया जाए, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि इन सबको एक करे, ठीक है। धार कमीशन ऑन 17 जून 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एस्टैब्लिश्ड द धार कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस S.K. Dar for forming in linguistic provinces. On 10 December 1948, the report of Dar Commission was published, but the issue remained unsolved. What is Dar Commission? So in this paragraph we will see, okay, 17 June 1947, Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. He established Dar Commission. Dar Commission इन्होंने इसके लिए establish किया कि जितने भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके लिए जो है अलग अलग स्टेट बनाए जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, तो उन्होंने किसकी हेल्प से, तो जस्टिस S.K. दार की हेल्प से ये एस्टेब्लिश किया, ठीक है, दार कमीशन। ऑन 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ कि जो दार कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट की, वो जो लोगों के इश्यूज़ थे वो फिर भी अनसॉल्व थे, मतलब जो लोगों की डिमांड्स थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। इसी तरह से जो भी स्टेट्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई। JVP committee, 3 ministers committee. To study the condition of creating linguistic provinces, the Congress appointed a committee on 29 December 1948. अब देखो, जब हम फ्रीडम्स के लिए लड़ रहे थे तो सब मिलकर आपस में सब मिलकर जो है ब्रिटिश से फ़ाइट कर रहे थे, ठीक है। जब हमें ब्रिटिश से फ्रीडम मिल गया है, इंडिपेंडेंस मिल गया, तो हम जो है आपस में ही स्टेट वाइज हम लोगों ने काफ़ी फ़ाइट हुई, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल हुआ, क्योंकि हम सबकी सोच जो थी अलग अलग थी, किसी की मैच नहीं कर पाती थी, किसी की मैच कर पाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। फिर अब एक और कमेटी जो है इस्टेब्लिश हुई जो कि JVP कमेटी थी, 3 minister कमेटी, ठीक है। अब इनका भी एम यही था कि जो स्टेट्स है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने जाए, ठीक है। तो अभी इसमें देखो
to study the condition of the creating linguistic provinces. कांग्रेस अपॉइंटेड एक कमेटी, कांग्रेस ने अपॉइंट किया एक कमेटी को, ठीक है, 29 दिसंबर 1948 में, ठीक है. इन इट इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पतावी चित्र माया. इट इज़ नॉन बाय द इनिशियल ऑफ दिस मेंबर एज JVP कमेटी. तो उसमें वो जो मेंबर्स थे कमेटी के कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल एंड प्रतिष्ठा माया, ठीक है. ये जो थे वो इस कमेटी के मेंबर्स थे. द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट कांग्रेस एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन द प्रिंसिपल बट द टाइम वाज नॉट प्रॉपर फॉर इट. अब जो है वो कांग्रेस जो कमेटी थी उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया था कि जो स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बने जाएं, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि ये टाइम सही नहीं है कि हम स्टेट को डिवाइड करें लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है. सेवर रिस्पॉन्स वॉज सीन थ्रू आउट महाराष्ट्र अगेन दिस रिपोर्ट. ड्यूरिंग दैट टाइम्स सेनापति बपत ऑर्गेनाइज रैलीज फॉर अवेकनिंग ऑफ पीपल. महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी मराठी बोलने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, रैली निकाली, ठीक है, कि मतलब हमें जो है एक स्टेट मिलना चाहिए, ठीक है, हर किसी को अपना एक स्टेट मिलना चाहिए उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है. ये एक रैली ऑर्गेनाइज़ की गई जिसमें लोगों को जागरूक किया गया, ठीक है. आचार्य आत्रे गॉट पास संयुक्त महाराष्ट्र प्रपोज़ल. ओके, उन्होंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, पास किया, ठीक है. लेकिन उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी कि मुंबई जो है वो इस पार्ट महाराष्ट्र का हिस्सा होगी, ठीक है. फिर वोटिंग हुई जिसमें कि जो पास बाय 50 अगेंस्ट 35 वोट. तो इस तरह से जो है महाराष्ट्र स्टेट बनी. ओके, नाउ नेक्स्ट, कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स ऑन 29 दिसंबर 1953 under the chairmanship of Justice Fazal Ali. This commission presented their proposal on 10 October 1955. This proposal advocated for creation of bilingual Mumbai state. इंडिया गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑन 29 दिसंबर 1953. अब जो है स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये कमीशन ऑर्गेनाइज़ की, अपॉइंट की, ठीक है, अंडर द लीडरशिप चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली, ठीक है. अब उन्होंने जो है अपना प्रपोज़ल प्रेजेंट किया, ठीक है, 10 अक्टूबर 1955 में. उन्होंने इस प्रपोज़ल में बताया कि जो मुंबई है उसमें जो है बिलिंगुअल मतलब कि सिर्फ मराठी बोलने वाले लोग नहीं बल्कि और भी लैंग्वेजेस बोलने वाले रह सकते हैं, ठीक है. अगर वो महाराष्ट्र है मीन्स मराठी स्टेट है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी पीपल्स ही वहाँ रह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वाले भी उस स्टेट में रह सकते. तो ये प्रपोज़ल उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है. नागपुर पैक्ट. Marathi people of all regions should resolve to make one state was the purpose of signing the Nagpur Pact in 1953. According to this pact, Samyukta Maharashtra was formed, including Western Maharashtra and Vidarbha along with Marathwada. In 1956, as per the amendment of the Constitution, Article 371 was included in it. According to the Nagpur Pact, assurance was given regarding equitable financial provision for the developmental work, ample finance for technical and vocational education,
provision of state government services in particular region in accordance with the population and assembly session once in a year should be held in Nagpur etc. स्टूडेंट्स जितने भी मराठीज थे जहाँ पर भी थे वो चाहते थे कि वो उनके लिए एक स्टेट बने, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ मराठी पीपल्स ही हो। और इसी स्थान पर जो है नागपुर पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, 1953 में। इस पैक्ट में संयुक्त महाराष्ट्र बनाने की बात की गई, ठीक है, जिसमें कौन कौन से स्टेट थे, वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भा एंड मराठावाड़ा, ये जितने भी थे इन सबको मिला के क्या चाहते थे, वो एक स्टेट बनाना चाहते थे। जितने भी मराठी पीपल हैं वो एक स्टेट में रहे, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंजेस आई 1956 में, ठीक है। और ये जो नागपुर पैक्ट था ये एक्सेप्ट हो गया और ये उन्होंने एश्योरेंस दिलाया कि ये जो स्टेट बनेगा इसमें जो भी फाइनेंशियल होगी, जैसे एजुकेशनल या फिर एजुकेशन पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, फिर गवर्नमेंट सर्विस लोगों को मिलेगी, पॉपुलेशन पे रीजन के हिसाब से पॉपुलेशन को भी मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और जो भी असेंबली का सेशन होगा, ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हम वो साल में एक बार जो है वो कहाँ पर होगा, नागपुर में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने ये जब पास हुआ नागपुर पैक्ट तो उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी सामने, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। Discontent among the Marathi-speaking people was growing. A grand march led by Senapati Bapat was taken to Vidhan Sabha. Morarji Desai was the chief minister at that time. The government declared a ban. The police started lathi charge and used tear gas. On that evening, an open meeting was conducted on Kamgar Maidan with a mob of around 50,000 स्टूडेंट्स। जितने भी मराठी पीपल्स थे उनका जो गुस्सा था गवर्नमेंट के लिए वो बढ़ गया था, क्योंकि जो वो चाहते थे कि महाराष्ट्र जो है वो पूरा मराठी लोगों के लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई जो एक पार्ट है उसको जो है मराठी महाराष्ट्र में कन्वर्ट नहीं किया गया, ठीक है। ठीक इस वजह से जो थे जितने भी मराठी पीपल्स थे उनमें गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी ये डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट तो बनाया लेकिन उसमें मुंबई भी आता है, ठीक है। उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर थे विधानसभा के मोरारजी देसाई, ठीक है। जितने भी मराठी पीपल थे उन्होंने मिलकर एक मूवमेंट क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बैन का डिक्लेरेशन देना पड़ा, ठीक है। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, टीयर गैस छोड़ी ताकि जो है उनका जो ये मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन कामगर मैदान में एक मीटिंग कंडक्ट की गई जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोग जमा हुए, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्हें किसने गाइड किया, कामरेड डांगे इन्होंने गाइड किया, ठीक है। और उनका एक ही ये था कि उनको संयुक्त महाराष्ट्र चाहिए था, ठीक है। वो जो है पूरा महाराष्ट्र जो है एक ही बनाना चाहते थे, मुंबई सेपरेट नहीं चाहते थे, ठीक है। और उनका स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि 21 नवंबर 1955 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्राइक पर बैठेंगे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल हुआ इन सब चीज़ों के लिए भी। यही उन्होंने कितनी भी स्ट्राइक की, कितने भी स्ट्रगल किए, पर उन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो चेंज नहीं हुआ, ओके। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र समिति।
The issues of demand of the Marathi speaking people started becoming complicated. Day by day, the demand of these Marathi people speaking is becoming more complicated. मतलब बढ़ती ही जा रही थी. Discontent spread throughout the state. On 6th February 1956, a meeting was conducted under the chairmanship of Keshav Rao Jedhe at Tilak Samrak Mandir in Pune. The Samiti declared its executive council, Comrade Shripad Amrut Dange as the president. अब जो मराठी स्पीकिंग पीपल्स जो थे उनका स्ट्रगल और बढ़ गया और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया. मीन्स जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने के बजाय और भी उलझती जा रही थी. फिर वापस से एक और मीटिंग कंडक्ट की गई 6 फरवरी 1956 को. ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन केशव राव जाधे, तिलक सम्राट मंदिर इन पुणे. ठीक है, यहाँ पर ये मीटिंग कंडक्ट हुई. ठीक है, द समिति डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जितने भी मराठी पीपल थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद की एक समिति बनाएंगे. ठीक है, जिसमें उन्होंने कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे को प्रेसिडेंट बनाया. ठीक है, और डॉक्टर TR नारवेन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया और SM जोशी को जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट किया इस समिति के लिए. ठीक है, और बाकी जितने भी इसमें नाम दिए हुए उन सब ने जो है इस समिति में बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक है, अब जो थी ये समिति के अकॉर्डिंग ही ये जो मूवमेंट्स होते या कोई भी स्ट्रगल होता तो ये इस समिति के अकॉर्डिंग ही करते. ठीक है, एट द सेम टाइम सेनापति बापट, क्रांतिष्ण, नाना पाटिल, लालाजी पांडसे, अभिल्याभी रंगनेकर contributed immensely to the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. इन सब ने मिलके जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया संयुक्त महाराष्ट्र के लिए. दे स्प्रेड द मूवमेंट टू रूरल पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र. व्हेन इट वाज क्लियर दैट मुंबई विल नॉट बी इंक्लूडेड इन महाराष्ट्र, एट दैट टाइम देयर अराउज ए ह्यूज पब्लिक एजिटेशन. जब ये क्लियर हो गया कि मुंबई जो है महाराष्ट्र में इंक्लूड नहीं है, मुंबई एक सेपरेट पार्ट है, तो उस टाइम जब जो मराठी पीपल्स थे उन्होंने ये सुनकर मतलब और भी वो उनमें गुस्सा आ गया. ठीक है, इन दिस मोमेंट 106 पीपल बिकेम मैटियार्ड इन दी फायरिंग ओपन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब जब उन लोगों ने ये सुना कि मुंबई जो है महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है, तो जितने भी लोग भीड़ थी, ठीक है, जितने भी मीटिंग में आए हुए लोग वो वहीं पर जो है हाथापाई करने लगे. जिसमें कि जब पुलिस ने ओपन फायरिंग की तो उसमें 106 लोग जो थे वो शहीद हो गए. ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस टाइम ओपन फायरिंग नहीं होती तो और भी लोग जो थे मर सकते थे. इन मेमोरी ऑफ द 106 सन्स ऑफ द महाराष्ट्र हु बिकम मैटियार्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र, द हतामता सम्राक वॉज erected इन मुंबई नियर फ्लोरा फाउंटेन. तो 106 लोग जो शहीद हो गए अपनी संयुक्त महाराष्ट्र के लिए. ठीक है, तो ये जो था हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया कि मतलब ये जो मोमेंट्स था ये भी बहुत बड़ा मोमेंट्स था. ठीक है, ऑन 1 नवंबर 1956 बिलिंगुअल मुंबई स्टेट बिकेम इनटू एग्जिस्टेंस. लेटर इन 1957 लोकसभा, विधानसभा एंड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन वेर हेल्ड. संयुक्त महाराष्ट्र समिति गॉट grand success. This result made it clear that the voters were against bilingual state and in a favor of संयुक्त महाराष्ट्र. जब 1957 लोकसभा एंड विधानसभा एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन वेर हेल्ड, ये इलेक्शंस हुए. ठीक है, जिसमें संयुक्त महाराष्ट्र समिति जो थी वो इस इलेक्शन में सक्सेस हुई, ग्रैंड सक्सेस मिली उनको. ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता था कि हमारी जो महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र है वो मतलब हमारी ही है.
लोग जो थे मतलब बिलिंगुअल स्टेट के अगेंस्ट थे, ठीक है। अब लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए थे कि वो जो चाहते थे कि एक स्टेट बने वो गलत था, ठीक है। At the dawn of 1st May 1960, in the special ceremony at Raj Bhavan on occasion of Labour Day, Pandit Nehru officially announced the formation of Maharashtra state. Yashwantrao Chauhan accepted the responsibility as first Chief Minister of Maharashtra. तो ये लोग ने जो है राजभवन में ये सेलिब्रेट किया। कौन सा डे सेलिब्रेट किया? तो लेबर डे सेलिब्रेट किया, ठीक। इस स्पेशल ओकेशन पे पंडित नेहरू जी ने जो है एक ये अनाउंस किया कि जो महाराष्ट्र फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र है उसके जो चीफ मिनिस्टर है वो किन्हें बनाया जाएगा? यशवंत राव को, ठीक है। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के, ठीक है। सबसे पहले उन्हें ये पोजीशन मिली, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पहले जो है हम स्ट्रगल कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस के लिए। फिर हमने जब ब्रिटिश से हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो फिर हमने जो है आपस में ही स्टेट वाइज जो है कौन से पार्टीशन हुआ। फिर पार्टीशन होने के बाद कौन से स्टेट कौन सी कंट्री के साथ मर्ज होंगे उस पर बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए। फिर इंडिया में फिर कौन से स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस बनेंगे उस पर स्ट्रगल हुआ। तो जो है काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है एक हमारी कंट्री बनी है, ठीक है। तो हमें जो है जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, कंट्री में पीस लाने के लिए, ठीक है। I hope student you all understood this chapter. If you have any doubt, any query, you all can ask me. Thank you.